Hello children, welcome to online class. In this video, we are going to read first chapter of Gulmohar, that is an uncomfortable bed, published by Gayatri Maupassant. Children, when you look at the spelling of Maupassant, so there is written Maupassant, but we have to pronounce it Maupassant. Now look at who is Gayatri Maupassant. Gayatri Maupassant was a French writer best known for his short stories. He wrote around 300 short stories along with a few novels and travel books. The Necklace and Uncomfortable Bed are some of his most famous stories. The children, before going to start the explanation of this chapter, at first I tell you some important fact about this chapter. The first important fact about this chapter is that the whole story narrated by the writer himself and the story moves around of him. The writer, when the story opened in the chateau in Picardy. What is the Picardy? Picardy is the northwestern place in France. So the writer introduced to a group of friends. The narrator provides us with a one critical detail about these friends. These guys are the joke stars who like to play a practical jokes on each other and everyone else. So this is the fact that narrator doesn't object. Children, in the story, the writer shared his personal experience when he went to a Picardy. So children, let's see what does happen at the end of a story. One autumn, I went to spend a few days with some friends in Picardy. Uh, in a one autumn vacation, writer decided to go Picardy and spend his few days with his friend. My friends were fond of practical jokes. Children, as I told you, मैंने आपकी स्टोरी के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो राइटर है उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर क्या है, वो क्या उनको क्या बहुत अच्छा लगता है, उनको प्रैक्टिकल जोक्स करना. व्हाट मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स? दैट जोक इज नॉट प्ले बाय द वर्बल बट मीन्स दैट इज हैपन बाय एक्शन, जिसको हम कोई एक्शन के द्वारा कर करते. जैसे एज अ एग्जाम्पल, एनी पर्सन स्टैंडिंग देयर एंड यू पुल द चेयर. जब कोई पर्सन खड़ा होता है उसके बैक से आप क्या करते हैं, चेयर को पुल कर देते हैं. तो सच टाइप ऑफ जोक्स इज कॉल्ड प्रैक्टिकल जोक्स. तो चिल्ड्रन, जो राइटर के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या, उनको प्रैक्टिकल जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई डोंट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट. सो कर इसलिए उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है जो जिन्हें ऐसे जोक्स पसंद नहीं है. When I arrived, they gave me a grand reception, which at once made me rather suspicious. They cheered loudly, embraced me, and made much of me as if they expected to have a great fun at my expense. करें, when I arrived, जब मैं पिकर्डी पहुंचा, सो उन्होंने मेरा बहुत ग्रेट, बहुत वार्म वेलकम किया. विच एट वंस मेड मी रादर सस्पिशियस, जिसने मुझे और भी सस्पिशियस, और भी ज़्यादा डाउटफुल बना दिया कि. एंड दे चीयर्ड लाउडली, वो एक साथ चिल्ला जब वो मेरा वेलकम कर रहे थे तो वो समय वो चीयर्ड कर रहे थे. एंड एम्ब्रेस्ड भी, और मुझे गले लगाए. एंड मेड मच ऑफ मी. व्हाट मीन्स ऑफ मेड मच ऑफ मी, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना. एज इफ दे एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत बड़े प्रैक्टिकल जोक्स को मैं टारगेट हूँ. आई सेड टू माई सेल्फ, लुक आउट ओल्ड फैरेट, दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू. सो एट वंस आई टोल्ड माई सेल्फ, ओ लुक आउट, बी कॉशियस, कि योर फ्रेंड हैज़ प्लान समथिंग फॉर यू, कि तुम्हारे जो फ्रेंड है उन्होंने क्या कर रखा है, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिकल जोक्स को प्लान कर रखा है. During the dinner, the mirth was excessive. I thought, here are the people who are really amused or too amused. There does not seem to be by any reason for so much mirth. They must have planned some good joke. Surely I am to be the victim of the joke. Attention. करेक्ट नाउ, जब ड्यूरिंग डिनर के समय पूरे उसने नोटिस किया कि जो उसके फ्रेंड थे वो ज़्यादा ही मर्थ मीन्स क्या होता है, खुश होना, बहुत ज़्यादा ही वो खुश थे, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे.
आई थॉट, मैंने सोचा, हियर आर द पीपल हु आर रियली अम्यूज टू अम्यूज। मैंने खुद से पूछा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खुश हैं कि कुछ ज़्यादा ही खुश है। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी रीज़न फॉर सो मच मर्ज। कर मुझे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं दिखाई देता है जिससे कि उनकी हैप्पीनेस की, उनकी खुशी का मुझे भी अंदाज़ा लग सके कि वो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश है। दे मस्ट हैव प्लान सम गुड जोक। करे लगता है मुझे कि उन्होंने कुछ अच्छा सा प्लान, जो जोक्स है उसको प्लान कर रखा है। श्योरली आई एम टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक। व्हाट मीन्स ऑफ विक्टिम चिल्ड्रन, शिकार करे। ओहो, मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है कि उस जोक का मैं ही शिकार होने वाला हूँ। सो नाउ बिकॉज सब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए। द इंटायर इवनिंग एवरी वन लव in exaggerated fashion, just as a dog can smell whatever it is hunting। कर कि जो पूरी शाम जो लोग थे कुछ ज़्यादा ही वो इंजॉय कर, कुछ ज़्यादा ही वो खुश थे। जस्ट एज द डॉग कैन स्मेल वॉट एवर इट इज़ हंटिंग, जैसे जो डॉग होता है वो स्मेल कर लेता है कि उसे क्या हंटिंग करना है। सो आई कुड ऑलमोस्ट स्मेल अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर। तो मैंने भी महसूस कर लिया कि हो कुछ ऐसा समथिंग प्लान कर रखा है उन्होंने इस पार्टी में, वो प्रैक्टिकल जोक मेरे साथ होने वाला। चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू व्हाट मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल जोक। प्रैक्टिकल जोक वो होते हैं जिनको बाय एक्शन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पीछे से आपने चेयर को हटा दिया, सच टाइप ऑफ जोक इज कॉल्ड अ प्रैक्टिकल जोक। सो बट वॉट वॉज इट, वो क्या था। आई वॉज वॉचफुल, मैं बहुत ही केयरफुल था। एंड रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन होना। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड अ मीनिंग अ जेस्चर। मैंने एक भी सिंगल वर्ड, जो भी मेरे फ्रेंड वहाँ पे बातें कर रहे थे उसके, उनकी शब्दों की मीनिंग और उनके इवन उनके जेस्चर को भी मैंने नोटिस किया, उनके हाव भाव को। व्हाट मीन्स ऑफ जेस्चर, जेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, तो मैंने उनके हाव भाव को भी नोटिस किया। एवरी वन सीम टू बी सस्पेक्ट, वहाँ जितने भी लोग थे सब मुझे डाउटफुल लग रहे थे। इवन लुक डिस्ट्रस्टफुली एट द फेसेस ऑफ अनदर गेस्ट। कर कि मैं उन लोगों को भी डाउटफुल नज़र से देख रहा था जिनको उस पार्टी में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। The hour struck for going to bed. Now the party time is over and all have decided to go to bed। सबने, जो पार्टी का टाइम जो था वो ओवर हो गया और सबने डिसाइड किया कि अब हमें सोने के लिए जाना चाहिए। The whole household came to accompany me to my room। Why? कहा कि सारे लोग, जितने भी लोग थे वो मेरे साथ रूम में आए, मुझे रूम में ड्रॉप करने के लिए। सो वाई, व्हाट्स द रीज़न। दे कॉल टू मी अ गुड नाइट। सबने मुझे क्या कहा, गुड नाइट कहा। आई एंटर्ड माई रूम, शट द डोर एंड रिमेन स्टैंडिंग विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप। करा कि मैंने रूम में इंटर किया और दरवाजे को बंद किया, एंड रिमेन स्टैंडिंग, और वहाँ पर खड़ा रहा, विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, बिना किसी एक भी कदम को आगे बढ़ाए मैं वहीं पर स्टैंड रहा। एंड होल्डिंग द कैंडल इन माई हैंड, और अपने हाथ में कैंडल को पकड़े हुए। आई हर्ड पीपल लॉफिंग एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर। मैंने नोटिस किया जो पीपल जो आउट ऑफ डोर थे वो वहाँ पे स्टैंड थे कॉरिडोर में, वो हंस रहे थे। और विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाहट, वो कुछ बातें करते। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी, मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि वो मेरी जासूसी करे। आई कास्ट अ ग्लांस डाउन द वॉल्स, द फर्नीचर, द सीलिंग, द हैंगिंग्स एंड द फ्लोर। कर मैंने सारी चीज़ों को नोटिस किया, चाहे इवन अ फर्नीचर, सीलिंग, हैंगिंग, जो भी फोटोज़ वगैरह जो भी दीवार पे लगे हुए थे, इवन अ फ्लोर को भी मैंने नोटिस किया। आई सा नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे वहाँ पर डाउट हो सके। आई हर्ड पर्सन मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, मैंने सुना कि जो लोग हैं वो मेरे दरवाजे के आसपास मूव कर रहे हैं। आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, मुझे कोई भी संदेह नहीं था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डोर में की होल है उसके थ्रू वो मेरी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे। चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द रेस्ट ऑफ पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस